Hello everyone, my name is Satish Birla. In this video, we are going to read a passage. I think it is a story passage, and you can see you can see on the board. I have written here, and it is very important. I think it is very important. It is very crucial for a person who want to develop their spoken English and who want to be a good speaker in English. This is the only way you can develop their spoken English and English. You have to keep practicing and don't worry about making mistakes. Everyone makes mistake, and it takes time to understand. It's gradually improved by your effort, and wherever you get any chance, wherever you go, you have to keep practicing, and uh, without any hesitation, one day you will find that it gradually improve your English in our brain, and sentence structures coming out our from our mouth without any effort. So this is the very important thing. And you have, if you want to speak in English, you have to read a lot, you have to write a lot, and these two methods which very essential, which is very uh, which is very crucial for a person, uh, whether whether you write wrong, whether you speak wrong or right, don't worry about, because when we speak with other people, at the same time our mind is stuck. And don't worry about making mistakes, because everyone makes a mistake. Even native speakers also making mistakes. So I think when we speak with other people, we have to don't think about making mistake. Otherwise you think a lot over and over your mistakes. Your coordinating, your mind coordination doesn't work. You can't speak any single word with your from your mouth, because your thought process and your speaking process will not align. So I think you have to practice a lot, and reading a lot. Practice and reading both are very crucial point, the at the point of learning. So you have to keep practicing, don't worry about making mistake, and it takes time. It is very important point. I will say you that, I will tell you that it is gradually, it takes time, means it takes time to improve your our in our brain. It automatically it is automatically coming it out gradually, and you have to read, and it is automatically coming from your mouth automatically word. Just just speak with others, and express your thought process, your feelings. And if you speak a lot with other people, your confidence level will increase. And one more thing I want to share with that, uh, don't worry about making mistakes, because it is a hindrance. It and use your mind and speak with other. uh, you can take, just take any subject, any topic, like any education, on any trees, on lifestyle, daily routine. You can speak also as well. You can speak as well. You can speak on that particular topic, and you just think then speak. Don't worry about making mistakes. Don't worry about people, what people saying, that people what saying we us. I have write a passage. I have write a passage on the board. So let's start. Let's just read. Let's start. So let's read it. There was very hot in the mini court room. है ना? सब क्या था? There was very hot in the mini court room. कोर्ट रूम में, छोटे से, मिनी यानी छोटा, देयर वाज वेरी हॉट, वहाँ गर्म था, हॉट यानी गर्म, गर्मी थी, वेरी यानी बहुत, वाज यानी था, देयर यानी वहाँ, हॉट इन किसमें थे? इन द मिनी कोर्ट रूम में, छोटे, मिनी यानी छोटा, मिनी यानी छोटा। तो कोर्ट रूम मतलब कि कोर्ट का जो अदालत का रूम होता है उसमें कमरा छोटा था, मिनी कोर्ट रूम था, स्मॉल कोर्ट रूम था। तो एक छोटे कमरे में बहुत गर्मी थी, एंड एवरीवन वाज फीलिंग स्लगिश,
हर कोई, एवरीवन मीन्स हर कोई, वाज था, फीलिंग महसूस कर रहा था, स्लगिश मीन्स सुस्त, सुस्त महसूस कर रहा था, इनएक्टिव है ना, इनएक्टिव महसूस कर रहा था, ठीक, पैसिव यानी उदास, सुस्त, पैसिव महसूस कर रहा था, स्लीपी सोया हुआ महसूस कर रहा था, स्लीपी सुस्त महसूस कर रहा था, है ना। गर्मी के बाद उस कोर्ट रूम में बहुत गर्मी थी, इसलिए सब क्या कर रहे थे, सुस्त महसूस कर रहे थे। स्लगिश मीन्स सुस्त, तो स्लगिश का मतलब होता है सुस्त, ठीक, सुस्त महसूस कर रहे थे। आफ्टर अ टायरिंग मॉर्निंग कब हो रहा है, थकाने वाली सुबह के बाद। टायरिंग यानी थकाने वाली सुबह के बाद। ये क्या है आपका, ये है आपका पार्टिसिपल, जो आईएनजी लगाकर, इसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव का काम करता है, वर्ब में आईएनजी लगाने पर वो एडजेक्टिव का काम करता है, पढ़ा होगा, पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। ये एडजेक्टिव का काम करता है, किसका काम करता है, एडजेक्टिव का। तो ये मॉर्निंग को क्वालिफाई कर रहा है, मॉर्निंग एक नाउन है, नाउन क्वालिफाई करने वाले वर्ड को क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। तो आफ्टर अ टायरिंग मॉर्निंग, थकाने वाली सुबह के बाद क्या कर रहे थे सब, सुस्त है ना, सुस्त महसूस कर रहे थे। द क्लर्क्स, जो अफसर होता है, मुंशी होता है, क्लर्क्स वर एनेक्सियस, चिंतित थे, कहाँ के लिए, टू गेट ऑफ टू लंच, लंच पर जाने के लिए, लंच पर रवाना होने के लिए क्या थे, चिंतित थे। एंड और इवन द, यहाँ तक कि, और इवन द जज, यहाँ तक कि जज मस्ट हैव फेल्ट रिलीव्ड, मतलब कि जज ने क्या महसूस किया, रिलीव्ड, आराम महसूस किया। ये कब किया, जब व्हेन यानी जब, व्हेन द लास्ट केस केम अप, सामने आया, बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के सामने, लास्ट यानी आखिरी केस सामने आया, केम माने पास्ट, प्रेजेंट कम का केम हुआ और फिर वापस कम हो जाएगा, तो केम फास्ट है, पास्ट है, तो केम अप यानी आया, बिफोर द कोर्ट, ठीक है, कोर्ट के सामने लास्ट मामला केस आया। तो अ शॉर्ट, ठीक है, मतलब महसूस किया, क्या महसूस किया, रिलाइव्ड आराम महसूस किया, कब किया, जब लास्ट केस सामने आया कोर्ट के सामने। अ शॉर्ट, वो केस कैसा था, अ शॉर्ट मिडिल एज्ड मैन था, विथ वाइट हेयर एंड स्मॉल ब्लैक आईज, मतलब जो शॉर्ट, एक छोटा, मिडिल एज मध्यम उम्र का आदमी, मैन, विथ वाइट हेयर सफ़ेद बाल थे, एंड स्मॉल ब्लैक छोटी, स्मॉल ब्लैक एंड काली आईज एंड आंखें थी, वाज नाउ स्टैंडिंग बिफोर हिम, मतलब जज के सामने स्टैंडिंग एंड खड़ा हो गया, है ना। वाज नाउ, अब वो क्या था, स्टैंडिंग बिफोर हिम, सामने खड़ा हो गया, बिफोर हिम यानी उनके सामने खड़ा हो गया। लास्ट जो केस आया उसमें अ शॉर्ट मिडिल एज्ड, मध्यम आदमी उम्र का आदमी था, विथ वाइट हेयर सफ़ेद बाल, काली आंखें, छोटी आंखें, वाज नाउ, वाज था अब, स्टैंडिंग बिफोर हिम, अब क्या था वो, बिफोर हिम मतलब सामने, बिफोर मीन्स सामने, उनके सामने खड़ा हो गया। द मैन, वो जो आदमी था, हैड अ फुलिश एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, फेस यानी चेहरा, उसके चेहरे पर, हिज फेस यानी उसका चेहरा, तो हैड अ फुलिश एक्सप्रेशन, द मैन हैड अ फुलिश एक्सप्रेशन, फुलिश यानी मूर्खता, एक्सप्रेशन भाव, अभिव्यक्त, है ना, फुलिश एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन भाव दिख रहे थे, ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर एक मूर्खतापूर्ण वाले एक्सप्रेशन दिख रहे थे। एंड और ही केप्ट लुकिंग, वो केप्ट लुकिंग अराउंड, स्टूबिली मतलब मूर्खता से, केप्ट यानी कीप का सेकंड फॉर्म, केप्ट लुकिंग जिरेंट फॉर्म, है ना, ये क्या है, जिरेंट फॉर्म है। केप्ट लुकिंग देखता रहा, अराउंड आसपास देखता रहा, आईएनजी फॉर्म लगता है जब भी हम कीप वर्ब लगाते हैं, इसके बाद आईएनजी फॉर्म लगता है। तो ही केप्ट लुकिंग, कीप लुकिंग या केप्ट लुकिंग, है ना, कीप लुकिंग, कीप के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है इसके बाद, तो ये केप्ट पास्ट हो गया, तो पास्ट के साथ भी आएगा लुकिंग, आने मतलब कि पास्ट के बाद भी वर्ब में आईएनजी फॉर्म ही आएगा, भले प्रेजेंट हो, कीप लुकिंग हो, है ना, या केप्ट लुकिंग हो, तो भी इसके बाद जो वर्ब आएगी वो आईएनजी फॉर्म में आएगी। तो ही केप्ट लुकिंग अराउंड, वो क्या देखता रहा, अराउंड यानी चारों ओर देखता रहा, स्टूपिडली मूर्खतापूर्वक रूप से वो चारों ओर देखता रहा, अराउंड मीन्स चारों ओर। कैसे देखता रहा, एज इफ, मानो, एज इफ ही वाज, वह था, मानो वह था, ट्राइंग हार्ड कोशिश कर रहा था, मुश्किल से कोशिश कर रहा था, टू अंडरस्टैंड, मानो ही वाज ट्राइंग हार्ड टू अंडरस्टैंड, मानो वह बहुत मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से, हार्ड यानी कठिन लग रहा, ट्राइंग कोशिश कर रहा था, हार्ड टू अंडरस्टैंड समझने की बड़ी मुश्किल से कोशिश कर रहा था,
मानो वो समझने की बड़ी मुश्किल से समझने की कोशिश कर रहा था, है ना, समझने की कोशिश कर रहा था, टू अंडरस्टैंड व्हाट, क्या समझने की कोशिश कर रहा था कि व्हाट वाज गोइंग ऑन, व्हाट यानी जो, व्हाट मीन्स जो, ये क्या है, प्रीपोजिशन, एक ये किस लिए आया है, कंजंक्शन है, लेकिन ये क्या है, ये आपका अंडरस्टैंड व्हाट वाज गोइंग ऑन, अंडरस्टैंड क्या, व्हाट वाज गोइंग ऑन, जो चल रहा था, जो चल रहा था, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आता है ना, रिलेटिव प्रोनाउन, तो रिलेटिव प्रोनाउन में कंजंक्शन के रूप में काम करता है। तो व्हाट वाज गोइंग ऑन, जो चल रहा था, मतलब वो बड़ी मुश्किल से, एज इफ ही वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, ही वाज ट्राइंग एंड हार्ड टू अंडरस्टैंड, मतलब बड़ी कठिनाई से समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या चल रहा है। व्हाट वाज गोइंग ऑन, गो ऑन एंड गोइंग ऑन यानी क्या चल रहा था या जो चल रहा था, उसे वो क्या कर रहा है, मानो वो कोशिश कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है कि व्हाट वाज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। द मैन, फिर भी उसको समझ में नहीं आ रहा था ना, एज इफ ही वाज ट्राइंग हार्ड, बड़ी कोशिश कर रहा था, ट्राइंग हार्ड अरे कठिनता से कोशिश कर रहा था, बड़ी मुश्किल से कोशिश कर रहा था, अंडरस्टैंड समझने की, व्हाट वाज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, बड़ी कठिनाई से समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या चल रहा है। द मैन, वो जो व्यक्ति था, वाज अक्यूज्ड, अक्यूज्ड यानी आरोपी था, आरोप, उस पर आरोप किया, द मैन वाज अक्यूज्ड, आरोपी था, ऑफ किसका, ऑफ ब्रेकिंग इनटू, ब्रेक इनटू एक फ्रेजल वर्ब है, तो ब्रेक इनटू का मतलब होता है दरवाजा को तोड़ के घुसना अंदर, तो द मैन वाज एक्यूज्ड ऑफ ब्रेकिंग इनटू अ हाउस, घर में घुसने के लिए आरोपी था, और साथ ही एंड स्टीलिंग अनकॉस्टली वॉच, और चोरी करने के लिए, स्टीलिंग चोरी करने के लिए, स्टीलिंग अ अनकॉस्टली, अनकॉस्टली मतलब सस्ती, वॉच है ना, वॉच यानी घड़ी, और एक स्टीलिंग चोरी करने के आरोपी था, किसका, स्टीलिंग अनकॉस्टली वॉच, जो एंड लगाया है ये दोनों के लिए है, मतलब कि क्या लिखा है कि द मैन वाज अक्यूज्ड ऑफ ब्रेकिंग इनटू हाउस, मतलब वो व्यक्ति आरोपी था, ऑफ ब्रेकिंग इनटू हाउस, घर में घुसने के लिए आरोपी था, तोड़ के तरा, है ना, घर में घुसने के लिए जबरदस्ती घर में घुसने का आरोपी था, और स्टीलिंग अनकॉस्टली वॉच, और चोरी करने का आरोपी था, कि उसने क्या करा था, अनकॉस्टली वॉच मतलब एक सस्ती वॉच चोरी करने का आरोपी भी था। द विटनेस, जो विटनेस था, जो गवाह था, विटनेस मीन्स गवाह, द विटनेस हु वाज, जो था, कॉल्ड जिसे कहते थे, है ना, द विटनेस हु वाज कॉल्ड, जिस विटनेस को कहा जाता था, जो विटनेस था, है ना, हु वाज कॉल्ड जिसे कहा जाता था, द विटनेस हु वाज कॉल्ड, है ना, विटनेस के बारे में बोल रहा है कि हु वाज कॉल्ड जिसे कहा गया, विटनेस जो गवाह जो था, डिड नॉट गिव अ वेरी, डिड नॉट गिव अ वेरी, नहीं दिया, गिव है ना, नहीं दिया था, क्या नहीं दिया था, वेरी, अ वेरी क्लियर अकाउंट ऑफ, क्लियर अकाउंट ऑफ, क्या क्लियर अकाउंट ऑफ, स्पष्ट कारण, वजह, क्लियर अकाउंट ऑफ, क्लियर स्पष्ट अकाउंट ऑफ वजह, उसकी क्या नहीं दे पाया था वो, है ना, नहीं दे पा रहा था। क्या लिखा है, द विटनेस गवाह हु वाज कॉल्ड जिसे कहते हैं विटनेस, डिड नॉट गिव अ वेरी क्लियर अकाउंट ऑफ व्हाट हैड हैपेंड, हैड हैपेंड जो हुआ था, हैड हैपेंड, व्हाट हैड हैपेंड जो हुआ था, व्हाट हैड हैपेंड जो हुआ, जो मतलब कि जो हुआ था उसके बारे में क्लियर अकाउंट ऑफ, कि वो स्पष्ट वजह या स्पष्ट विटनेस की जो कारण था वो नहीं दे पा रहा था, वो नहीं, डिड नॉट गिव अ वेरी, बहुत क्लियर अकाउंट ऑफ व्हाट हैड हैपेंड नहीं दे पा रहा था, ठीक है, क्लियर हुआ। द विटनेस हु वाज कॉल्ड जिसे विटनेस कहा गया, वो क्या, डिड नॉट गिव अ वेरी क्लियर अकाउंट ऑफ, डिड नॉट नहीं दिया, नहीं दिया था, क्या, गिव अ वेरी क्लियर अकाउंट ऑफ व्हाट हैड हैपेंड जो हुआ, स्पष्ट वजह नहीं दे पा रहा था जो वहाँ हुआ, है ना, जो हैड हैपेंड हुआ था, ठीक है। ही क्लेम्ड, उसने दावा किया, उसने क्या दावा किया, जो इसने विटनेस ने, कि ही क्लेम्ड, उसने दावा किया कि, ही क्लेम्ड टू हैव सीन, उसे देखे जाने का दावा किया, उसने दावा किया टू हैव सीन, देखे जाने का दावा किया, है ना, ही क्लेम्ड टू हैव सीन अ मैन, एक व्यक्ति को देखे जाने का, है ना, ही क्लेम्ड टू हैव सीन अ मैन आउटसाइड, बाहर, द हाउस मतलब घर के बाहर एक व्यक्ति को देखे जाने का दावा किया, है ना, ही क्लेम्ड टू हैव सीन अ मैन आउटसाइड द हाउस, मतलब घर के बाहर किसी व्यक्ति को देखे जाने का दावा किया। वन नाइट, किसी रात को, ठीक है, हाउस वन नाइट, किसी रात को उसने किसी व्यक्ति को देखे जाने का दावा किया, एक रात को किसी व्यक्ति को घर के बाहर देखे जाने का दावा किया।
बट लेकिन आई थिंक अंडरस्टैंड, आई थिंक गेट इट माई पॉइंट। बट ऑन बीइंग क्वेश्चन फर्दर, बट लेकिन ऑन बीइंग क्वेश्चन फर्दर मतलब ऑन बीइंग होने पर, है ना, होने पर, बीइंग यानी बी का वर्ब में आईएनजी फॉर्म, वजह से या होने पर, क्वेश्चन प्रश्न और होने पर, फर्दर यानी आगे, आगे क्वेश्चन और होने पर, लेकिन आगे क्वेश्चन और होने पर ही कन्फेस्ड, उसने स्वीकार किया, क्या स्वीकार किया कि दैट, कि ही वाज नॉट श्योर, वो पक्का नहीं था, है ना, कि वो पक्का नहीं है, वेदर की, वेदर मीन्स की कंजंक्शन है, दिस वाज द मैन, ये वही व्यक्ति है, मतलब वो स्वीकार कर दिया कि ही वाज नॉट श्योर, पक्का नहीं है कि वेदर की दिस वाज नॉट द, दिस वाज द मैन, दिस वाज द मैन, ये वही व्यक्ति है। द जज कंसिडर्ड, जज समझ गए थे, है, कंसिडर का मतलब होता है समझना या विचार करना, विचार करना या फिर समझना, समझना। जज कंसिडर्ड द मैटर, मैटर है मामला, मामला समझ गए थे जज, द मैटर, जज कंसिडर्ड द मैटर, मतलब जज ने कंसिडर कर लिया मैटर, मामले को समझ लिया, फॉर अ शॉर्ट टाइम, छोटे से समय में, थोड़ी सी देर में मैटर, मामले को समझ लिया, एंड देन फिर, एंड देन एंड फिर, देन डिक्लेयर्ड, और घोषित किया, क्या घोषित किया, दैट, है ना, डिक्लेयर्ड दैट एज देयर वाज नो रियल प्रूफ, एज क्योंकि, या चूंकि, क्योंकि देयर वाज नो रियल प्रूफ, कोई वास्तविक प्रमाण नहीं था, है ना, क्योंकि कोई वास्तविक प्रमाण नहीं था, द मैन कुड नॉट बी फाउंड गिल्टी, जो व्यक्ति था वो कुड नॉट बी फाउंड गिल्टी ऑफ एनी क्राइम, किसी अपराध में वो व्यक्ति आरोपी नहीं पाया गया, ठीक है, मतलब छोटे से समय में जज ने क्या कर लिया, शॉर्ट टाइम में मैटर को समझ लिया, अंडरस्टैंड, कंसीडर कर लिया, एंड देन, और फिर डिक्लेयर, घोषित कर दिया कि दैट की एज देयर वाज नो रियल प्रूफ द मैन कुड नॉट बी फाउंड गिल्टी ऑफ एनी क्राइम, कि मतलब व्यक्ति किसी क्राइम में अपराधी नहीं पाया जा सका, ठीक। ही सैड, उन्होंने कहा, दैट की द केस वाज डिसमिस्ड, उन्होंने कहा कि द केस वाज डिसमिस्ड, मामला क्या हो रहा है, डिसमिस्ड हो गया है, निरस्त हो गया है, एंड, ठीक, एंड और देन फिर रोज टू गो, एंड देन और फिर रोज टू गो, और रोज यानी राइज का सेकंड फॉर्म, राइज यानी बढ़ना, टू गो जाने के लिए बढ़ रहे थे, बढ़े, और जाने के लिए बढ़े, देन रोज टू गो जाने के लिए बढ़े, मीनवाइल इसी बीच, है ना, मतलब मामला दशा डिसमिस केस, एंड वो जाने के लिए बढ़ ही रहे थे कि मीनवाइल इसी बीच, द अक्यूज्ड, मीनवाइल यानी इसी बीच, द अक्यूज्ड आरोपी, वेरी पजल्ड, वेरी पजल्ड मतलब हैरान था, पजल्ड मीन हैरान होना, आरोपी क्या था, हैरान था, बहुत हैरान था, इट वॉज क्लियर दैट, यह स्पष्ट था कि, इट वॉज, ये क्लियर, इट वॉज क्लियर, स्पष्ट था कि, दैट की, ही हैड नॉट अंडरस्टूड, कि उसे समझ में नहीं आया, ही हैड नॉट अंडरस्टूड अ थिंग, बात उसे समझ में नहीं आई, ही हैड नॉट अंडरस्टूड, ही हैड नॉट अंडरस्टूड अ थिंग, मतलब बात उसे समझ में नहीं आई, ये क्लियर हो गया था, इट वाज क्लियर दैट ही हैड नॉट अंडरस्टूड अ थिंग, बात समझ में नहीं आई, नोटिसिंग, ध्यान देते हुए, नोटिसिंग दिस, इसे ध्यान देते हुए, किसे, कि उसे बात समझ में नहीं आई, नोटिसिंग दिस, देखते हुए, द जज पॉज्ड फॉर अ मोमेंट, मतलब जज क्या हो गए थे, पॉज, रुक गए, फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी क्षण के लिए जज रुक गए, एंड देन और फिर, एंड देन द मैन सेड, सडनली, है ना, व्यक्ति ने सडनली कहा, अचानक कहा, एक्सक्यूज मी, सॉरी, एक्सक्यूज मी, यानी माफ करना सर, एक्सक्यूज मी सर, बट लेकिन, वो क्या बोल रहा है, डू आई हैव टू गिव, डू आई हैव टू गिव द वॉच बैक और नॉट, मीन्स, बट सर, एक्सक्यूज मी, बट सर, excuse me sir, but do I have to give the watch back or not, means do I have to give the watch back or not, क्या होता है, मतलब I have to give, इसको सीधा पढ़े अगर तो क्या होगा, I have to give, मुझे देना है ना, I have के साथ वर्ब की फॉर्म, I have to read, मुझे पढ़ना है ना, पढ़ना है, I have to read, I have to स्पीक, मुझे बोलना है, ठीक, तो हैव के साथ टू का फॉर्म या हैज के साथ टू के फॉर्म
किसी काम को करना है, तो क्या बोल रहा है कि डू आई हैव, वो परमिशन ले रहा है कि क्या मुझे करना है, लेकिन डू आई हैव टू गिव, मुझे क्या देना है, द वॉच, घड़ी को, है ना, बट डू आई हैव टू गिव द वॉच बैक, वापस, है ना, क्या मुझे घड़ी को वापस देना है कि नहीं, और नॉट, कि नहीं। क्लियर हुआ। तो मतलब वो बात के समझ में नहीं पाया और उसने अचानक बोला जज के सामने कि सर मुझे, क्या मुझे सर, बट लेकिन क्या मुझे, डू आई हैव टू गिव द वॉच बैक और नॉट, क्या मुझे घड़ी को वापस देना है कि नहीं। क्लियर हुआ। तो वो बात को समझ नहीं पाया और उसने ऑटोमेटिक इसका कन्फ्यूजन, उसने इसका एक्सेप्ट कर लिया, कन्फेशन कर लिया कि वो घड़ी उसके पास ही थी। इस बात से ये क्लियर हो रहा है, ठीक है, वही आरोपी है। सो इस पैसेज में हमें बहुत सारी वर्ड्स हैं, वोकेबलरी है जो कि इम्पोर्टेंट है ना, बेनिफिशियल फॉर होगी एनीथिंग। सो आई थिंक, सो इसमें इस पूरे पैसेज में बहुत सारे मीनिंग्स है और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं। सो इट इज़ वेरी beneficial, crucial for a person who want to develop their spoken English as well as written English. The more you read, the more you get better in English. The more you read, the more you get better in English. So I think it is very important. So if you like my video, like and subscribe my channel, and we will meet in next video. Bye bye.